آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، سول سوسائٹی نے جناح ہاؤس پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ فوج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے جناح ہاؤس میں شمعیں روشن کی گئیں۔ خصوصی تقریب میں فیملیز کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ جناح ہاؤس پر حملہ کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ چیئرمین پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ برگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر نے کہا کہ پاکستان ہم سب کا ہے، جہاں بھی نقصان ہوا وہ سب کا نقصان ہوا ہے۔ تقریب کے اختتام پر پاکستان کی امن و سلامتی کے لیے دعائیہ تقریب منعقد ہوئی۔ مسلم لیگ نون لاہور کے صدر سیف الملوک کھوکھر نے کہا ہے کہ کل صبح 6 بجے ٹھوکر راج بیگ سے بڑا قافلہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا۔ سپریم کورٹ کے سامنے پرامن احتجاج کیا جائے گا۔ لیگی رہنماؤں نے بے گناہ ہونے کے باوجود جیلیں کاٹی۔ مسلم لیگ نون لاہور کے صدر سیف الملوک کھوکھر کی کھوکھر پیلس میں پریس کانفرنس۔ سیف الملوک کھوکھر نے کہا کہ پی ڈی ایم کی کال پر پیر کی صبح 6 بجے ٹھوکر نیاز بیگ سے بڑا قافلہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا۔ سپریم کورٹ کے سامنے پرامن احتجاج کیا جائے گا۔ چیف جسٹس سے اپیل ہے کہ القادر ٹرسٹ کے مرکزی کرداروں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ 6 بجے ٹھوکر سے بہت بڑا ایک ریلا سپریم کورٹ کے سامنے پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں، جس نے اس شخص کو کہا کہ مجھے تجھے دیکھ کر خوشی ہوئی جس نے ملک کو آج تباہی کے دہانے پہ لے گیا۔ سیف الملوک کھوکھر نے مزید کہا کہ نون لیگی رہنماؤں نے بے گناہ ہونے کے باوجود جیلیں کاٹی۔ 2018 سے پہلے پاکستان کے کیا حالات تھے اور آج کیا ہیں؟ جناح ہاؤس اور جی ایچ کیو سمیت اہم عمارتوں پر دھاوا بولا گیا۔ 2018 سے پہلے کیا حالات تھے پاکستان کے، آج کیا حالات ہیں؟ 2018 سے پہلے میاں محمد نواز شریف کے دور میں ملک اچھا بھلا ترقی کر رہا تھا۔ اس کے بعد ثاقب نثار صاحب نے اسی طرح کیا جس طرح آج عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون لاہور کے صدر سیف الملوک کھوکھر نے کہا کہ اسلام آباد میں پی ڈی ایم کا دھرنا تاریخی ہوگا۔ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے قانون کی خلاف ورزی ہو۔ کیمرامین حافظ عظیم کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔ سپریم کورٹ کے باہر پی ڈی ایم سے اظہار یکجہتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا قافلہ لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ لاہور سے قافلے کی قیادت صدر پیپلز پارٹی لاہور اسلم گل نے کی ہے۔ پی ڈی ایم کا سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کا اعلان۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا قافلہ بھی اظہار یکجہتی کے لیے روانہ۔ پیپلز پارٹی کے قافلے کی قیادت اسلم گل نے کی۔ چودھری اسلم گل نے کہا کہ پی ڈی ایم کی کال پر سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیا جا رہا ہے۔ لاہور سے 3 گروپوں کی شکل میں لوگ اسلام آباد پہنچیں گے۔ 75 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا جو آج عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ 72-73 سال کی پوری جو زندگی پاکستان کی، اس میں اتنی زیادتی نہیں ہوئی، اتنا ظلم نہیں ہوا، اتنی تباہی نہیں ہوئی، اتنی نافرمانی نہیں ہوئی جو اس عمران خان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے ملک کی جڑیں کھوکھلی کی ہیں۔ بھارت عمران خان کی حرکات پر بہت خوش ہے۔ کیمرہ مین عمیر کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے پر نائلہ کیانی کو مبارکباد۔ نائلہ کیانی نے چوٹی کو سر کر کے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نائلہ کیانی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ مزید تفصیلات بتائیں گے محمد یاسین۔ جی یاسین، بتائے گا ان کی جانب سے مزید کیا کہا گیا؟ جی، وزیر شہباز شریف نے اپنے ایک ٹویٹ میں نائلہ کیانی کی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر کے پاکستان کا سر فخر سے بلند کرنے پر ان کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نائلہ کیانی نے اپنی ٹوپی میں ایک اور پنکھ کا اضافہ کرتے ہوئے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کر کے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کو پیمائی کے اپنے شوق اور اپنے کیڈر پر حیرت انگیز کامیابیوں کے ذریعے نائلہ کیانی نے اس تصور کو تقویت بخشی ہے کہ ہماری خواتین کچھ بھی حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ وزیر اعظم نے نائلہ کیانی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہوئے ان کے مستقبل کے منصوبوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد یاسین، آپ نے آگاہ کیا۔ مارکیٹ سے آٹا چینی کے سرکاری ریٹ غائب۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 2750 روپے تک پہنچ گیا ہے، جبکہ چینی کا سرکاری ریٹ کاغذوں تک ہی محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ زاہد عابد کی رپورٹ دیکھیے۔ آٹے اور چینی کی قیمت نے شہریوں کو پریشان کر دیا۔ مارکیٹ میں کہیں پر بھی سرکاری ریٹ پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ آٹے اور چینی کی من مانی قیمت پر فروخت جاری ہے۔
शहर भर में 20 किलो आटे का थैला 2750 रुपए तक जा पहुंचा। 10 किलो आटे का थैला 1370 से 1400 रुपए तक फरोख्त हो रहा। खुला सुर्ख आटा 140 रुपए और फाइन आटा 150 रुपए किलो बेचा जा रहा। चक्की आटे की कीमत 170 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। चीनी का निर्ख 125 रुपए फी किलो से कम न हुआ। मार्केट में चीनी की कीमत चंद हफ्तों से इंतहाई सतह पर है। विफाकी हुकूमत ने चीनी के निर्ख 98 रुपए 82 पैसे मुकर्रर कर रखे हैं। सरकारी रेट पर कहीं भी चीनी दस्तयाब नहीं। फ्लोर मिल्स मालिकान गंदम महंगी होने और शुगर मिल्स मालिकान गन्ना महंगा खरीदने का जवाज बनाकर जायद दाम वसूल कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल के सबब गाड़ियों की फ़रोख्त शदीद मुतासर हुई है। गाड़ियों की फ़रोख्त में नुमाया कमी सामने आई है। रवा माली साल अब तक 24,444 यूनिट ही फ़रोख्त हो सके हैं, जबकि पुरानी गाड़ियों की सेल में भी हैरत अंगेज़ कमी सामने आई है। राहिल अली रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क में जारी सियासी और मुआशी बहरान ने तरक्की का पहिया जैम कर दिया। गाड़ियों और जीप की फरोख्त में 80% कमी रिकॉर्ड। गाड़ियों की फरोख्त सालाना बुनियादों पर 4,463 यूनिट्स रह गई। गुज़िश्ता बरस मई में 2,27,995 यूनिट सेल किए गए। ट्रैक्टर्स की फरोख्त में भी 10 माह के दौरान 47% कमी हुई है। मार्केट में जहाँ नई गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में कमी हो रही है, वहीं पुरानी गाड़ियों के खरीदार भी न होने के बराबर हैं। कार डीलर्स का कहना है कि शोरूम्स में बैठकर ग्राहकों का इंतजार करते रहते हैं। सेल भी बहुत मुतासर हुई है। कोई ग्राहक जो है आ ही नहीं रहा, मतलब पता करने भी नहीं आ रहा कि गाड़ी की क्या कीमत है। आज इतवार का दिन है, देख लें सुनसान है, कोई ग्राहक है ही नहीं। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के दादोशुमार के मुताबिक जुलाई 2022 से अप्रैल 2023 तक सिर्फ 24,444 यूनिट्स ही सेल हो सके हैं। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ राहिल अली, लाहौर न्यूज़। खबर शामिल करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुछ रिलीफ देने की तैयारी। पेट्रोल 10 रुपये और डीजल 8 रुपये फ़ी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान है। ओगरा ने समरी विफाकी हुकूमत को भिजवा दी है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 7 से 10 रुपये फ़ी लीटर तक कमी की जा सकती है। डीजल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर तक कमी की तजवीज़ दी गई है। गुज़श्ता 14 दिनों में ब्रंट ऑयल मार्केट में खाम तेल की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा $77.44 फ़ी बैरल तक रही। वज़ीर ख़जाना ओगरा सिफारिशात पर वज़ीर आज़म से मुशावरत करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक हतमी फैसला कल किया जाएगा। आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 15 मई की शब 12 बजे के बाद होगा। मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से कमज़ोर मुआशी सूरत हाल शहर की कारोबारी बिरादरी ने हुक्मरानों और सियासी जमातों को संजीदगी का मुजाहरा करते हुए सियासी तनाव ख़त्म करके मुस्तकिल मुआशी पॉलिसी बनाने का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। सियासी तनाव की वजह से मुल्क की मईशत मुश्किलात का शिकार, सनती, तजारती और कारोबारी सरगर्मियाँ भी दुश्वार। बिजनेस कम्युनिटी ने सियासी तनाव को मुल्क की मईशत के लिए जहर कातिल करार दे दिया और सियासतदानों को आपस का तनाव कम करने का मुतालिबा कर दिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर अदनान खालिद भट्ट का कहना था कि डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है, कारोबारी हजम सुकड़ रहा है। सियासी तनाव कम किया जाए और मुल्क की मईशत पर तवज्जो दी जाए। चंद दिनों की बात नहीं है, ये चंद अयाम, ये चंद हफ्तों की और चंद महीनों से सिलसिला चला आ रहा है। जब तक किसी मुल्क में सियासी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होगी, जहां आपकी मईशत की पॉलिसी वाज़ेह नहीं होगी, जहां आपकी मईशत की पॉलिसी के लिए लोग और हकाम बाला बैठ के स्टेक होल्डर के साथ पॉलिसी को मुरतब नहीं करेंगे, वहाँ तरक्की नहीं होगी। आपने ये देखा कि 7 माह के अंदर जिस तरह 60 से 70 रुपये की कदर गिरी और डॉलर बढ़ा, परवान चढ़ा, इसी तरह हमारे इंपोर्ट पे इफेक्ट आया। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर तनवीर अहमद शेख का कहना था कि मौजूदा सियासी हालात की वजह से सनती पहिया रुक रहा है, खाम माल महंगा हो रहा है। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट का कहना था कि सियासी अना और जिद ने कारोबार तबाह कर दिए, बाजार और मार्केटें सुनसान हो रही हैं। खुदारा होश के नाखुन लें। बिजनेस कम्युनिटी का कंसर्न था कि अगर ये मुल्क में जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आई तो इसके बड़े ख़तरनाक किस्म के जो है वो चीज़ें सामने आएंगी। और आज हम ये देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ की जो इस वक्त प्रोडक्शन है वो बिल्कुल रुक गई हैं। आप जैसे मेरा ताल्लुक भी ऑटो इंडस्ट्री से है, इस वक्त ऑटो इंडस्ट्री की 85% सेल्स जो है वो ड्रॉप कर चुकी हुई हैं। ताजर बरादरी से और ख़ास और हुक्मरानों से अपील है कि आप आपस की लड़ाई छोड़ के इस मुल्क का सोचें, इस मुल्क के रहने वालों का सोचें, कारोबार का सोचें। मईशत किस तरफ जा रही है कि मार्केटें वीरान हैं, हर चीज़ जो है महंगी होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि खौफ के मारे कोई कस्टमर बाहर निकलने को तैयार नहीं है।
वाज़ेह रहे कि कारोबारी हलकों की जानिब से सियासी कशीदगी के बाइस मईशत की तनज़्ज़ुली और बारहा तमाम सियासी जमातों से मामलात को बेहतर बनाने का मुतालिबा किया जा रहा है, लेकिन किसी भी सियासी जमात की जानिब से बिजनेस कम्यूनिटी के मुतालिबात पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। कैमरामैन उमैर फजल के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। दरबारों पर आने वाले ज़ायरीन भी महंगाई की लपेट में आ गए। चावल और घी की कीमतें बढ़ने से पकी पकाई देगों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। ज़ायरीन कहते हैं महंगाई के बाइस अब मन्नतें मांगते हुए भी सोचना पड़ता है कि पूरा कर सकेंगे या नहीं। महंगाई के असरात दरबारों के ज़ायरीन पर भी नुमायां होने लगे। चावल और घी की कीमतें बढ़ने से पकी पकाई देगी भी पहुंच से दूर होने लगी। महंगाई की वजह से न सिर्फ ज़ायरीन बल्कि दुकानदारों का कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। चावल की पकी पकाई छोटी देग पहले 1200 रुपए में मिल जाती थी, अब इसकी कीमत 2000 रुपए तक पहुँच चुकी है, जबकि बड़ी देग 10 से 15,000 रुपए में मिल रही है। ज़ायरीन का कहना था कि अब तो मन्नतें मांगते हुए भी सोचना पड़ता है कि पूरी कर सकेंगे या नहीं। जहाँ पहले 2 देगे तकसीम करते थे, अब एक करना पड़ती है। उसकी कीमत भी आसमान से बातें कर रही है। महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले देखे ना, हम लोग आते थे कि दरबार पे आना, सलाम करना और 2, 3, 4 देगे भी लोग बना लेते थे और वो स्पेशल गोश्त की होती थी, बिरयानी टाइप होती थी। अब तो इतनी महंगाई के लोग कहते हैं कि भाई चने वाली और बड़ी शॉर्ट कर दी है, बहुत लिमिटेड कर दी है। लोग पहले 2 देगे रहते थे, अब वो है ना वो 1 देग पे जो ना वो गुजारा कर लेते हैं। वो मन्नत के हिसाब से ले लेते हैं कि जो मन्नत है ना हमारी 1 देग पे पूरी हो जाए। दुकानदारों का कहना था कि पहले कारोबार अच्छा चलता था, हर वक्त रश लगा रहता था। जब से चावल और घी की कीमत में इजाफा हुआ, देगों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। बड़ी देग अब कोई नहीं खरीदता, जबकि छोटी देगें ही बनानी पड़ती हैं। बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है हमारा महंगाई की वजह से कारोबार। पहले जो सस्ता काम था, घी, आयल वगैरह, चावल वगैरह, ये सस्ते थे। 800-1000 रुपये की देग लोग आराम से ले लेते थे। अब जो चावल भी हैं वो भी 400 रुपये किलो महंगे हो गए हैं और आयल भी है वो भी 600 रुपये किलो हो गया हुआ है। लोगों की पहुंच से दूर हो गया है कि देख लें। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्होंने यहाँ पे मन्नतें मांग लेते हैं, लोग देख चढ़ाने के लिए उनको पैसे नहीं होते। महंगाई ने हर तबके को मुतासिर कर दिया है, जिसकी वजह से दरबारों पर आने वाले ज़ायरीन और अकीदतमंदों का न्याज तकसीम करना भी दुश्वार होता जा रहा है। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़।